word file also, right? Then what do? We read from a file, correct? So हम फाइल से बाद में क्या करते हैं, रीड भी करते हैं. सो वेन एवर वी वॉन्ट टू रेफर द प्रीवियस नोट्स, हम वो फाइल को ओपन करते हैं, उसमें से रीड करते हैं. देन आई कैन राइट ऑल्सो टू दैट पर्टिकुलर फाइल, राइट? So suppose I want to do some kind of modifications in that file, or whatever I want to do, I can do that. That is writing to a file. Then moving to a specific location in a file, it means I want to save that file at particular location, right? So suppose my file I'm saving into D drive, then in subject notes and everything. Then what do? We do a closing a file. So all these are nothing but the file operations that can be carried out on a file. So let us now write a program to read a file and display its contents on the screen. Okay, so program यहाँ पे मैंने लिखा है, this is the display contents of a file on a screen. मतलब हमारे पास कोई तो एक फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है पीसी में, हम उसे ओपन करेंगे, रीड करेंगे और उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करेंगे. सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रोग्राम इज शेयर्ड इन अ डिफरेंट फाइल एंड नेम इज गिवन एज pr1.c. सो प्रोग्राम का एक दूसरा वर्ड फाइल है जिसमें मैंने सारे ऑल 6 प्रोग्राम्स आई हैव रिटन, and that word file also I will share with you today, and this ppt also, and those programs I have explained in the videos, so I will share with you link as well. So opening a file, so before we read or write the information to a file on a disk, we must open a file, right? So before we can read or write the information to a file, so on a disk we must open a file. Definitely if we want to read some content or if we want to write some content, we have to open a file first. To open a file we must call a function called as fopen. So whenever we want to open a file, we have to call this function which is fopen. It will open a file जैसे pr1.c, because यहाँ पे हमने बताया है कि हमारा pr1.c जो है that is the name of the file which is our first program. तो हम उसे ओपन करेंगे और कौन से मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड. Now what is the mode? So next we are going to see in this that in this file handling chapter we follow some kind of a modes, file modes. We will learn that in the coming slides. So when we open this file in the read mode, so वो क्या करता है, वो C compiler को ये बताता है that what would be the reading the contents of the file. Okay, so जब हम रीड करेंगे तो उसे वो कंपाइलर को बताएगा कि हमें कौन से कंटेंट्स रीड करने हैं. एंड नोट दैट R इज अ स्ट्रिंग एंड नॉट अ कैरेक्टर, हेंस द डबल कोट्स एंड नॉट अ सिंगल. जब भी हम मोड लिखेंगे ना किसी भी फाइल का, तो हम ऐसे लिखेंगे R मतलब रीड मोड, A मतलब अपेंड मोड, W मतलब राइट मोड. सो आगे हम वो चीजें देखने वाले, बट हम उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं. What do you mean by double inverted comma? As I have already told you, double inverted comma का मतलब होता है string and single inverted comma मतलब character. But ये जो mode है वो double inverted comma में रहेगा. तो mode double inverted comma में होगा, so that is considered as a string. Okay, so string consider होगा. Next is, so let us see what does it do. जैसे ही हम fopen function use करेंगे to open our file, so वो क्या करता है, देखो fopen performs the 3 important tasks when you open the file in the R mode. जब भी हम हमारे फाइल को रीड मोड में ओपन करने की कोशिश करते हैं, so fopen performs 3 important tasks. First, it reaches on the disk the file is to be opened. पहले तो वो डिस्क में ढूंढेगा कि ऐसे नाम की कोई फाइल प्रेजेंट है या नहीं है. जिस फाइल को हम ओपन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नाम की कोई फाइल उसमें डिस्क में प्रेजेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर है तो वो ओपन करेगा. दैट इट लोड्स द फाइल फ्रॉम द डिस्क इनटू द प्लेस इन द मेमोरी कॉल्ड बफर. और जैसे ही उसे वो फाइल मिलेगी, वो वहां से डिस्क से यहाँ पे आएगा मेमोरी में, और बफर में वो फाइल ओपन करेगा. बफर का मतलब है टेम्पररी मेमोरी. बफर का मतलब है टेम्पररी मेमोरी, जहाँ पे हमारा जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे बफर पे परफॉर्म होता है. ओके, इट सेट्स अप द कैरेक्टर पॉइंटर. अब देखो तुम्हें यहाँ पे पॉइंटर दिख भी रहा है, F इज द कैरेक्टर पॉइंटर. इट सेट्स अप द कैरेक्टर पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द बफर. सो जैसे हमें पता ही है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पॉइंटर.
वो बफर में, अभी ये देखो ये pr1.c हमारा डिस्क में फाइल है तो वो यहाँ पे आएगा, वो मेमोरी में चेक करेगा कौन से लोकेशन पे 40, वो 40 पे यहाँ पे बफर पे ओपन करेगा और उसके फर्स्ट लोकेशन का वो पॉइंटर पॉइंट करेगा। तो वो हमेशा फर्स्ट लोकेशन पे ही पॉइंट करता है, राइट। सो लेट अस सी नाउ पॉइंटर fp विल बी डिक्लेयर्ड एज। अभी देखो अब तक हम कितने डेटा टाइप्स सीखते आ रहे हैं विच आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। वी हैव लर्न इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ऑल दीज आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। कैर, तो हम जब भी कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं या नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम आगे उसका डेटा टाइप लिखते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, एवरीथिंग, राइट। बट जब हम फाइल की बात करते हैं तो फाइल भी खुद एक डेटा टाइप है। रिमेंबर, FILE, फाइल इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। सो जब भी हम फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसका जो पॉइंटर हम डिक्लेयर करेंगे $fp या कोई भी नाम दे दो, fp इज नॉट कंपल्सरी, तो उसका जो डेटा टाइप होगा ना वो हम फाइल देंगे। तो फाइल क्या है? फाइल एक स्ट्रक्चर है। तो गर्ल्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर एक खुद डेटा टाइप है जो हम बनाते हैं। वैसे फाइल भी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है विच हैज बीन डिफाइंड इन द हेडर फाइल stdio.h। सो हमारा ये वही हेडर फाइल है जिसमें हमारा बाकी का इनपुट आउटपुट फंक्शन भी डिक्लेयर हुआ है विच इज printf, scanf एंड ऑल। उसी हेडर फाइल में फाइल स्ट्रक्चर भी डिफाइन हुआ है। Therefore it is necessary to include this file #include। तो हमारा फाइल जो है वो भी एक स्ट्रक्चर है और वही डेटा टाइप है और वही हम पॉइंटर को आगे डिक्लेयर करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग अ फाइल। तो हमने पहले क्या देखा? ओपनिंग अ फाइल, हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज रीडिंग अ फाइल। So once the file has been opened for the reading using fopen, as we have seen, the file's contents are brought into the buffer. As I've already explained just now, that first of all the compiler will search that file on the disk whether that file actually exists or not. Once the compiler finds out that file is brought into the buffer, okay, and there it is open. So either that entire file is brought into the buffer which is called as a wholly file, or a partially it is brought into the buffer, and a pointer is set up that points to the first character in the buffer. This pointer is one of the elements of the structure to which the fp is pointing. So pointer is nothing but one of the elements of structure where fp is pointing. So we all know that our pointer will point to the first location of the memory. Now fgetc, ये function है हमारा। fgetc function is used to read the file contents from the memory. So fgetc जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे फाइल से कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज होता है। यू कैन सी, गेट मतलब रीड करना, c मतलब कैरेक्टर, f means file. So how it is operated? ch मतलब कैरेक्टर, जो हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम में, ch is equal to, mute yourself please, ch is a character which we read, right? We declare in the program ch is equal to fgetc is the function and in bracket fp is written. fp मतलब पॉइंटर, वही पॉइंटर जो फाइल पे पॉइंट कर रहा होगा और वही जहां पे पॉइंट कर रहा होगा उसी का कैरेक्टर यहाँ पे रीड हो रहा है ch में। So fgetc reads the character from the current position, advances the pointer position so that it now points to the next character and returns the character that is read, which we collected in the variable ch. Now note that once the file has been opened, we no longer refer to the file by its name but through the pointer. So क्या बोल रहे हैं हम? जो पॉइंटर जिस लोकेशन पे होगा उसी लोकेशन का कैरेक्टर रीड होगा, मतलब करंट लोकेशन का। फिर वो पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, मतलब वो आगे के लोकेशन पे जाएगा और वहां का कैरेक्टर रीड होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो फाइल है वो उसके नाम से रेफर नहीं हो रही है बल्कि पॉइंटर के वेरिएबल से रेफर हो रही है। सो दैट इज व्हाई पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। नाउ ट्रबल इन ओपनिंग अ फाइल। सो ऐसा भी हो सकता है कि फाइल हम ओपन तो करने जा रहे हैं बट हमें प्रॉब्लम आ रही है। ये कब होगा? अगर हम ऐसी कोई फाइल ओपन करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं है सिस्टम में, तो फिर वो ओपन कैसे करेगा?
राइट, तो वो नाम का फाइल बना देगा, उसमें इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और वहां पे कुछ एरर आ रहा है तो फाइल ओपन नहीं होगी। सो सी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल यूजिंग एफ ओपन, द फाइल मे नॉट बी ओपन्ड व्हाइल ओपनिंग द फाइल इन आर मोड। मतलब जब हम फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग दिस फंक्शन एफ ओपन, और वो भी कौन से मोड में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, आर मोड में, पर फाइल ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों होगा? दिस मे हैपन बिकॉज द फाइल बीइंग ओपन मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन द डिस्क एट ऑल। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, अगर डिस्क पे ऐसा कोई नाम का फाइल प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर वो ओपन कैसे करेगा? Secondly, obviously we cannot read a file that does not exist. Similarly, while opening a file for writing, fopen may fail due to number of reasons like, अभी देखो R मोड में अगर हम ओपन करने जा रहे हैं फाइल, R मतलब रीड मोड, तो रीड करने के लिए मतलब हमें फाइल में और कुछ करना